Okay, so let's start the lecture. So last time we were doing two-dimensional Fourier transform. इसमें कोई सवाल हो तो we can discuss. Otherwise, let's move on to other type of transforms, orthogonal transforms. So by orthogonal, I mean orthogonal dictionaries in which we do not compute their explicit inverse. Rather, we simply take it the transpose of the matrix, or in case of complex Hermitian transpose. So second type of transform is related to Fourier. We call it Hartley transform, discrete Hartley transform actually. So what is the difference between Fourier and Hartley transform is the difference only in the type of kernel. So if you remember in Fourier transform, so in DFT, we have used something like this, e raised to power j 2 pi n k over capital N. ठीक है, सो हम ये चीज यूज कर रहे थे विच इज कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, या इसको हम जनरलाइज करके कह देते हैं कि ये कर्नल फंक्शन है। तो बेसिकली ये आता कहाँ से है, ये आपके पास कंटिन्यूस टाइम में एक फंक्शन होता है, उसको आप सैंपल करते हैं एट सम सैम्पलिंग रेट एफ एस इज इक्वल टू 1/n। सो जो कंटिन्यूस टाइम फंक्शन है दैट इज सिंपली e रेज टू पावर j 2 pi कैपिटल ft। अगर आप इसको सैंपल करेंगे तो यू विल गेट a corresponding function in discrete time domain which is e raised to power j 2 pi n k over capital N. Now the idea is why to limit yourself to these complex functions, ठीक है, तो we can do something better. मसला ये है फोरियर के साथ कि ड्यू टू द फैक्ट दैट वी यूज साइनोसाइड्स, आपकी जो एनर्जी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम 0 to n-1, पूरे बैंड के ऊपर आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। So the compactness property of Fourier is very bad. So the people started looking into other types of Fourier related transform. From there came the idea of using real functions instead of these complex functions. So can we use some real functions? ठीक है, तो वहां से फिर दो ट्रांसफॉर्म निकले। फर्स्ट वाज द हार्टले ट्रांसफॉर्म, उसमें द पीपल यूज cos of 2 pi ft plus instead of using j simply sine of 2 pi ft। j लगा देंगे तो वही चीज बन जाएगी जो ऊपर e raised to power j 2 pi ft है। ठीक है, सो सैंपल इट यूजिंग सेम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो हमने उधर यूज की है, fs is equal to 1/n, और आपके पास एक नया कर्नल आ जाएगा which will be cosine of 2 pi nk over capital N. So sorry, 2 pi nk over capital N plus sine of 2 pi nk over capital N। ठीक है, so instead of using जो आपके पास वो है complex exponential, you can use this function. So due to the property of sine and cosine, we can show that जो आपके पास जो matrix बनता है similar to that of discrete Fourier transform, that is orthogonal matrix as well. So this was not a useful transform. Actually, it was quickly replaced by another transform which became standard and is still being used, for example, in JPEG. So that transform is discrete cosine transform. So there is nothing new in all of them except the use of kernel. So discrete cosine transform, instead of using cosine and sine both to represent your kernel function for the basis generation, they simply use cosine but in a very clever way. So first, the type of kernel in discrete cosine transform is this function in discrete time cos of 2n plus 1 into pi k over 2n. Okay, let me tell you the idea behind discrete cosine transform and why
it succeeded so much that it is still in being used in many standards. So the main problem with Fourier is Fourier cannot deal with discontinuity. So for example, if you have a signal like this in time domain and your signal x of t is like this, and suddenly there is a jump like this and then it decays to zero or whatever the values it takes after this discontinuity, something like this. So we have some discontinuity here. So Fourier is very bad in representing these discontinuities. So Fourier transform or DFT is very bad. Whenever there is a discontinuity in time domain, so whenever there is a discontinuity in time domain, Fourier says that you need almost all frequencies in frequency domain to represent it. Okay? So we lose the property of compactness. Compactness means we are finding a representation which is a good representation in terms of encoding all the information present in our signal using by just a few coefficients. ठीक है, तो आपका जो DFT है, DFT में कितने coefficients होते हैं? So आपके पास 0 to n minus 1. So you have total n coefficients in DFT. So ideally we see कि हमारे पास जो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हैं दे शुड बी मच लेस देन कैपिटल N. So that is achieved by discrete cosine transform, but how? So it cleverly extends your discrete time signal. So for example, if you have x of n something like this, so x of n is from 0 to n minus 1 defined over this interval. Okay? So now if you know the theory behind DFT, DFT is just an approximation of discrete time Fourier transform under some condition कि आपके जो जितने सैंपल टाइम डोमेन सिग्नल में है उतने ही सैंपल होने चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में. सो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है जिसके यहाँ पे n कोफिशिएंट्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं, हम इसको पीरियोडिक बनाते हैं एंड देन व्हाट वी डू वी सिंपली टेक इट्स Fourier transform and we say that our Fourier series for discrete time signals and we say that we only keep one period. That becomes our discrete Fourier transform. So in doing so, in theory, discrete Fourier transform views your x of n something like this. It says, okay, so you have all 0, 0, 0, 0, and then you have this jump discontinuity here, whatever the value your x of n takes here. And similarly, then you have this one period of x of n, and then you have this jump discontinuity to 0 here. So due to these two jump discontinuities, your discrete Fourier transform, it spreads the energy of your x of n over all of the coefficients almost from 0 to n minus 1, non-zero energy. So discrete cosine transform, what does it do? It first extends your x of n to its even version. ठीक है, वो कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका x of n जो है वो इस तरीके से है, something like this from 0 to n minus 1, मैंने उसका envelope प्लॉट किया. So first it will extend it evenly from n minus 1, sorry, minus of n minus 1, मतलब यहाँ से लेके 0 तक और फिर इसको n minus 1 का shift दे देगा. So in this way, we avoid this discontinuity which was bound to happen at 0. ठीक है, तो इस वजह से अगर आप और से देखें तो इसके डिनोमिनेटर में 2n आ रहा है इंस्टेड ऑफ n. तो आप एक n सिग्नल को उसके इवन एक्सटेंशन करके 2n सिग्नल बनाते हैं and then you take simply two-dimensional Fourier transform. Oh, sorry, 2n point Fourier transform, which is your discrete cosine transform. ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल मैंने नोट्स में दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा. बट दिस इज वेरी यूजफुल ट्रांसफॉर्म as far as the practical transforms are concerned, only due to its property कि it avoids the main problem with Fourier theory, जो कि क्या है कि आपके पास जो डेटा है
it should be अब जो signal है it should be compactly represented into very few coefficients. Especially in cases of images, discrete transform is the real success. That is why it is still being used in JPEG 2000 and in JPEG 2002. So this was just the introduction to these two transforms, and there are many more transforms. We cannot almost cover them in detail, their properties, like you have seen for Fourier transform. Since they are extended from Fourier, all of the properties of Fourier do apply to these Fourier related transforms or dictionaries. So moving on, what we have next is non-Fourier related orthogonal transforms. So that's very interesting topic. You may not have seen them in your DSP or signal and system course. If you remember, our aim is we are finding a good representation for this y. So this is given to us, and this is we need to find it using some good matrix A or D or whatever you name it. So such that this is n cross n, okay, and A transpose is equal to A inverse. जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म है उसमें हम हर्मिशियन ट्रांसपोज यूज करेंगे, और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्म है, दैट इज डीएफटी. तो जब आप डीएफटी यूज करेंगे तो ट्रांसपोज की जगह हर्मिशियन यूज करेंगे, अदरवाइज इट इज गुड टू यूज ट्रांसपोज. ठीक है. सो सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस और यूनिटरी मैट्रिसेस. सो ऑर्थोगोनल डिक्शनरी. No, people started looking into non-Fourier orthogonal matrices. अभी तक जो मैंने आपको 3 एग्जांपल बताई हैं, they are practical, they are being used everywhere, but there are also many other types of matrices which can be constructed, which obey this property, okay, and which perform much better as compared to Fourier dictionaries in many cases. So first of them is what we call, the idea is very simple. I will show you how that idea evolved using simple functions, and then how it is being used currently. Maybe some of you have heard the name of wavelet transform. So wavelets are basically competitor of Fourier, but they are not based on Fourier theory. So the first transform is what we call Wash Hadamard transform, WHT. Okay, so what is the main idea? So the main idea is based on starting from a 2 cross 2 matrix, which is orthogonal matrix. So let's consider a matrix H1, which is in this form: 1 over square root of 2, 1, 1, 1, minus 1. Okay, so this is a fundamental matrix, and it can be shown that H transpose is equal to H inverse. Sorry, H1 transpose is equal to H1 inverse. Because HI is orthogonal to HJ. जो दोनों कॉलम्स हैं वो ऑर्थोगोनल हैं, और दोनों का जो नॉर्म है इस केस पे वो भी इक्वल टू 1 है. 1 ओवर स्क्वायर रूट बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Okay, starting from this matrix, we can go on and construct higher matrices. ठीक है, using an operation in linear algebra that we call Kronecker product. So Kronecker product of two matrices, let's define it. So suppose I have two matrices, one is A, which is M cross N, and then I have another matrix which is B, suppose this is K cross L. Okay, so their Kronecker product A cross, and then we encircle it. That is the symbol for Kronecker product. A cross B is defined as, आप A का पहला एलिमेंट लें A11 और इसको पूरे B से मल्टीप्लाई करें.
और यहाँ पे रख दें, ये आपका पहला एक ब्लॉक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ए का दूसरा एलिमेंट लें A12 और फिर उसको B से मल्टीप्लाई करें एंड सो ऑन। So this will go till A1n into B. Similarly, आप रोज में भी ऐसा करें तो आपके पास एक बड़ा सा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा AM1B और आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी AMN into B। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल अगर A आपके पास है 1 2 3 4 और B है लेट्स सपोज आपके पास 5 6 7 8, तो इनका जो क्रोनेकर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ बिगर मैट्रिक्स। साइज अभी मैं बताता हूँ आपका, उसका वो होगा क्या, वो होगा ए का पहला एलिमेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट बी मैट्रिक्स। ठीक है, वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट बी मैट्रिक्स। सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाइड बाय बी देन 4 मल्टीप्लाइड बाय बी। So A Kronecker with B, this will result into a matrix. So 1 multiplied by B, 5 6 7 8 as it is आ जाएगा यहाँ पे, that is 1 multiplied with B. Similarly 2 multiplied with B, so that will be 10 12 14 and 16। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो 3 और 4 मल्टीप्लाइड विद B होंगे वो आ जाएंगे 21 24, then you have 20 24 28 and 32. That is your Kronecker product of these two matrices. ठीक है, इसका साइज क्या होगा? So इसका साइज होगा in general m multiplied by k cross n multiplied by l. Remember A was of size m cross n and B was of size k cross l. तो ये इसका साइज बन जाएगा जो आपका Kronecker प्रोडक्ट आएगा। Okay, so using this simple operator which is Kronecker product, what we can do, we can go on and use this H1 to build H2 H3 H4 and higher order matrices which are called wash matrices. ठीक है, so the formula is very simple. So we use Hn equal to H1 जो कि हमें known है Kronecker product with Hn minus 1. That is the formula. This is a recursive formula. ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे सो दैट विल बी 1/√2 जो H1 के साथ है वो बाहर आ जाएगा और जो मैट्रिक्स में है वो क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखें H1 में पहली एंट्री 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई Hn-1 इज Hn-1, 1 मल्टीप्लाइड बाई Hn-1 इज Hn-1। यहाँ पे भी Hn-1 आएगा और इधर आ जाएगा माइनस Hn-1। So that is the multiplication between H1 and Hn-1, not usual multiplication but Kronecker product of these two matrices. ठीक है, तो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, क्योंकि H1 2 क्रॉस 2 का है तो इसका साइज इन जनरल यू कैन वेरीफाई विल बी 2 raised to power n cross 2 raised to power n. Okay, so let's try to build simple matrices using this formula. ठीक है, 2 क्रॉस 2 हमारे पास है, सो दिस H1 इज फॉर 2 क्रॉस 2। तो अगर हमारे पास जो, हाँ जी शोएब सर H1 कैन बी डिफरेंट इजंट इट, या फिर यही रखना है? यही रखना है, सो दैट इज फिक्स्ड फॉर वॉश हेडमर ट्रांसफॉर्म, दैट इज फिक्स्ड। अभी फिर मैं दूसरा ट्रांसफॉर्म बताता हूँ उसमें वी वेरिएट। ओके सर। ओके, सो H1 इज 2 क्रॉस 2, तो अगर आपके पास जो डेटा है, जो डेटा वेक्टर है y है उसका साइज 2 क्रॉस 1 है, then you can simply use H1. But what if size is 4 क्रॉस 1 और 8 क्रॉस 1 और 1024 क्रॉस 1?
ठीक है, तो फिर आपको जो उसके करिस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होगा वो आपको पहले बिल्ड करना पड़ेगा यूजिंग दिस फार्मूला H1 Kronecker product with Hn minus 1 and then you will have to use it. ठीक है, so let's see for the case of n is equal to 2. So when n is equal to 2, this equation will become H2 equal to H1, ठीक है, product with H1 itself. ये हो जाएगा, जब n is equal to 3 होगा तो H3 will be equal to H1 product with H2. तो आपके पास H2 already है, आप उसका product ले लेंगे and so on. तो just the case of H2. So in case of H2, we have H1. So for n is equal to 2, we need to find H2 matrix. So H2 is defined as H1 product with H1. That will be 1 over square root of 2 into 1 over square root of 2 will be 1 over square root of 4. ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा 1 1 1 1, यहाँ पे सारे 1 आ जाएंगे, -1 1 -1, then 1 -1 -1 -1 -1 and 1. That will be your H2 matrix. Similarly, अब आप H2 को यूज करके H3 बना सकते हैं, फिर H3 को यूज करके H4 बना सकते हैं. The important thing is a property or a theorem that can be proven very easily. So if A and B are orthogonal matrices or unitary matrices, so these are matrices, just remember मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ, these are matrices for which matrix inverse is equal to its transpose. ठीक है, if A and B are orthogonal matrices, then their Kronecker product A Kronecker with B will be a new matrix. ठीक है, is also an orthogonal matrix. It's a very useful property of constructing higher order matrices using simply 2 cross 2 matrix. ठीक है, so इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप लोग जो है वो नोट्स में देख, सिंगल लाइनर प्रूफ है, मे बी समवन कैन प्रूव इट राइट नाउ. Okay, so that is it. So what we need to do, for example, if you have been given y, so if you have been given y which is of size n cross 1, so you have to find its representation x which is n cross 1 using WHT matrix. तो उसका जो corresponding आपके पास H matrix होगा उसको आप आसानी से build up कर सकते हैं. ठीक है, using this procedure, जब आपके पास H matrix आ जाएगा, then your x is simply equal to this matrix. Remember, transpose लेना है हमने analysis operation में हमेशा, और फिर into y. और synthesis के लिए क्या करेंगे, y will be equal to h into x. Simply matrix into vector and vector into matrix. लेकिन अब हम जो matrix बना रहे हैं, that is a special type of matrix. Similarly, this can also be extended to images. जैसे हमने 2D ट्रांसफॉर्म में किया था, उस केस में x यहाँ पे वेक्टर है, y वेक्टर है, इमेजेस आ जाएंगे, इधर भी मैट्रिक्स आ जाएगा, इधर भी मैट्रिक्स आ जाएगा. द एक्सटेंशन इज वेरी ट्रिवियल, तो आप लोग देख लेंगे. टॉपिक of really interesting topic and topic of discussion is next transform, which actually led the revolution in signal processing and still continues to dominate, is discrete Haar transform.
So discrete Haar HA transform. So this transform led the basis of what we call wavelet transform in modern theory. Ji Shoaib? सर ये फोरियर बेस्ड मेथड नहीं है, isn't it WHT वाला? जी ये फोरियर बेस्ड मेथड नहीं है. हाँ, तो सर अगर हम इसका 2D मतलब जो हम करें पिक्चर का, तो फिर इसकी बेसिस वैसी निकलेंगी जिस तरह फोरियर की निकली थी? जी बिल्कुल वैसे निकलेंगी इसकी बेसिस. मसलन अगर आप इसको 2D में एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास जो इसका एनालिसिस ऑपरेटर आएगा दैट विल बी XWHT, जिसका साइज वही होगा N1 क्रॉस N2 जो कि आपके इमेज का साइज है. दैट विल बी इक्वल टू HN1. ठीक है, ये पहला मैट्रिक्स होगा और फिर आपके पास होगा सॉरी इसका ट्रांसपोज होगा, फिर आपका टाइम डोमेन इमेज होगा और फिर होगा दूसरा मैट्रिक्स HN2. ऐसे आ जाएगा सिंपल एक्सटेंशन. और इसकी जो बेसिस हैं वो इस मैट्रिक्स के, मसलन अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो इसके आपके पास होंगे कॉलम्स HK1 कॉलम मल्टीप्लाइड बाई दूसरे मैट्रिक्स के रोज HK2 ट्रांसपोज. दैट विल बी बेसिस. अब आप K1 और K2 को वेरी करेंगे तो उसी तरीके से एक बेसिस सेट बन जाएगा जैसे हमारे पास फोरियर के केस में बनना था. जैसे लास्ट टाइम वो आपकी क्लास में से एक बच्चे ने वो बेसिस आइडेंटिफाई कर ली थी. मींस के इसी मैट्रिक्स का ये कॉलम और इसी मैट्रिक्स की जो ये रो है, इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा सॉरी आउटर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द बेसिस सेट. सिमिलरली अगले केस में ये वाला कॉलम और ये वाली रो दैट विल बी बेसिस सेट एंड सो ऑन. फोरियर में भी ऐसे हो रहा था. ओके, सो फॉर डिस्क्रीट हार ट्रांसफॉर्म. ठीक है शोएब, कोई और सवाल है इसके ऊपर? नहीं सर, थैंक यू. Okay, so for discrete Haar transform, we use very special type of functions. Those are called Haar functions. HAAR, Haar function. So Haar was he was a scientist जिसके नाम पे ये फंक्शंस हुए थे 1947 और 1946 में ये ट्रांसफॉर्म डिस्कवर हुआ था. एंड देन फॉर 40 years जो है वो पीपल एक्चुअली बिलीव्ड कि इस तरह के और कोई फंक्शंस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते बिकॉज दीज फंक्शंस हैव वेरी यूनिक प्रॉपर्टी. तो देन पीपल केम इनटू दिस वर्ड this research and actually generalized the notion of R functions to other functions. और आज जो है वो आप अपने मर्जी के इस तरह के functions जो है वो define कर सकते हैं. Those are called wavelet functions. Okay, so this forms the basis of wavelet transform. So what are Haar functions? So there is no rocket science. They are based on some empirical observation observed by Haar. ठीक है, और उसने बड़ा मैथमेटिकली जो है उनको डिफाइन कर दिया जो कि आप किसी भी ऑर्डर का के हार फंक्शंस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं. सो इट स्टार्ट विद डिफाइनिंग H0t. सो आपके पास जो भी फंक्शन होंगे सो HNT इज nth ऑर्डर हार फंक्शन. ठीक है, मैं कंटिन्यूस टाइम में कर रहा हूँ, इसको सैंपल करके हम मैट्रिक्स बनाएंगे. So start with n is equal to 0. So for n is equal to 0, Haar said choose H0t equal to 1. Okay, एक चीज मैं भूल गया हूँ. All of these functions only exist for 0 to t to 1. सिर्फ इस इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं from 0 to 1. So for h of t equal to 1 that is given to us. So it means our first Haar function is this 0 to 1. This is H0t. अगर इसकी एनर्जी आपने नॉर्मलाइज करनी है तो वो कर लें. लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इट्स एनर्जी जो कि नॉर्म इसकी 1 होनी चाहिए. देन फिर क्या है, फिर आपके पास है for n equal to 2 for n equal to 1. For n equal to 1 you will have h1t. ठीक है, h1t will also be defined from 0 to 1.
कैसे होगा अभी बताता हूँ. Then you will have for n is equal to 2, that will be h2t. So h2t will also be defined over 0 to 1. इसी रेंज में क्या होगा अभी देखते हैं. And so on. तो h2t, h3t, 4t, 5t, 6t, आप इस तरीके से ये सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. बट हाउ? सो दैट इज सिंपली एन एम्पिरिकल फार्मूला. कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि आफ्टर ऑब्जर्वेशंस आई. दैट इज द रीजन के पीपल जो है, क्योंकि उसका कोई एक फ्रेमवर्क नहीं था उनको डिफाइन करने का, people actually believed that no other function exists apart from these functions. That empirical framework. So that empirical framework is h0t is 1. Okay, we know. And everything that we are now saying is valid for 0t less than equal to 1. So first thing is define an n. Define an n which is larger than 0, a positive integer, like this. So n is equal to 2 raised to power p plus q minus 1. So what is 2 raised to power p plus q? So 2 raised to power p is defined as, so largest power of 2 contained in n. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर n 10 है तो लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 कंटेन्ड इन n क्या होगी? सो 2 रेज टू पावर व्हाट इज लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 कंटेन्ड इन 10? सो 3. ठीक है, तो p क्या हो जाएगा? 3. ओके, देन यू हैव कंटेन्ड इन n, तो इसका मतलब ये है कि इन जनरल 2 रेज टू पावर p जो है दैट विल बी लेस देन n. ठीक है. और अगर जो है इसको मैं उसमें लिखना चाहूँ लॉग की फॉर्म में, तो 0 विल बी less than equal to p, that will be less than equal to log of base 2 into n. ये पहली चीज है n में. दूसरी चीज है q minus 1. So q minus 1 is, once you have defined n and p, then q minus 1 is simply n minus 2 raised to power p. ठीक है. So this in a way is the remainder. कि जब आपने n डिफाइन कर दिया, p डिफाइन कर दिया, तो what is n minus 2 raised to power p? That is q minus 1. It means जो q है आपका, that will always be in this range. ठीक है. So you define these numbers. So all of these so were empirical numbers के वो जो observation है उससे आए. So अगर आप गौर से देखें तो n, p और q का आप एक टेबल बना सकते हैं. So for example, if n is 1, तो largest power of 2 contained in n is 1 is 0. फिर उसके बाद रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2 raised to power n minus 2 raised to power p is 1. When n is 2, largest power of 2 contained in n is equal to 2 is 1. रिमाइंडर क्या बच जाएगा? So you have n is equal to 2. तो अगर आप गौर से देखें q minus 1 is n minus 2p, तो q यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. So जब आप 3 करेंगे यहाँ पे p जो है 1 हो जाएगा, 2 and so on. इन फार्मूले से आप ये पूरी टेबल बना सकते हैं. दिस इज वेरी ट्रिवियल. जो आपके पास मैनिपुलेशन है वो कर लें. Now, given these three numbers, n, p, and q, and the fact that we have to define every function on the range from 0 to 1, Har came up with this idea that, okay, for n is equal to 0, we know h0 of t should be equal to 1. But for every other n larger than equal to 1, remember n is integer, build your nth order Har function like this. H and t should be equal to 3 values. So first value is 2 raised to power p by 2. Second value is minus into 2 raised to power p by 2.
and third value is 0. So 0 is otherwise. So 2 raised to power p by 2 or minus 2 raised to power p by 2. Now here we have some range of t, or here we have some range of t. तो इसको मैं अलग explicitly लिख लेता हूँ 1 और 2. जो range 1 है, that is this, q minus 1 over 2 raised to power p is less than equal to t, that is less than equal to q minus 0.5 over 2 raised to power p. और जो 2 है वो आगे है इसके exactly फौरन इसके बाद q minus 0.5 over 2 raised to power p is less than equal to t, and that is less than, strictly less than, यहाँ पे equal to नहीं है, sorry, strictly less than q over 2p. खैर वो लिख भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो t है वो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में फर्क नहीं पड़ता. Okay, so that is it. Using these some empirical formulas, you can define functions over the range from 0 to 1. तो फॉर एग्जांपल अगर आप n is equal to 2 लें, n is equal to 1 लें, n is equal to 1 से शुरू कर लेते हैं. So for n is equal to 1, from the table we will see p that will be equal to 0, we will see q that will be equal to 1, और जब आप h1 of t जब आप define करेंगे using this formula 2 raised to power p by 2, so वो क्या बन जाएगा आपके पास 1, 0 हो जाएगा ना, that will be 1, और 2 raised minus into 2 raised to power p by 2, so this will be minus 1, और जो रेंज है वो आ जाएगी, रेंज आ जाएगी फ्रॉम 0 लेस देन t लेस देन 0.5, और ये हो जाएगी 0.5 is less than equal to t is less than equal to 1. That will be your range, h1t. So simply now let me plot first 4 Haar functions and then we will sample it to build a matrix. ठीक है, तो अगर आप पहले 4 जो Haar functions हैं, if you plot them, you get these functions. So this is h0t, h1t, h2t, and h3t. So range is from 0 to 1. Here we have 0.5, we need to be very exact. ठीक है, जो पहला आपका फंक्शन बनेगा that will be like 1, something like this. जो दूसरा फंक्शन बनेगा that will be like this. So this will be 1, this will be minus 1. जो तीसरा फंक्शन बनेगा that will be like this. फिर 0. So you have square root of 2 here and minus square root of 2 here. और जो चौथा फंक्शन बनेगा that will be shifted version of this. ठीक है, so this will be square root of 2, this will be minus square root of 2, and so on. तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे n, जो आपकी ये पल्स है, this smaller pulse, this is called wavelet, कि ये छोटी सी wavelet का मतलब होता है छोटी सी वेव फॉर्म. ये जो है ये मजीद कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड p. तो जो आपके पास p है, it controls the magnitude of this pulse and width of the shape. ठीक है, और जो q है, that controls the position, कि वो पड़ी हुई किधर है. फॉर एग्जांपल पहले केस में वो 0 से शुरू हो रही है और 0.5 पे खत्म हो रही है, सॉरी इसमें h2t में, और दूसरे केस में वही पल्स पड़ी हुई है 0.5 शिफ्टेड.
So in this way you can build infinite functions. Or the beautiful thing about this function is कि all of these four functions यहाँ पे time domain के ऊपर they are orthogonal to each other. आप h01 को h0 को multiply करें h1 से, इनको integrate करें, you will get 0. h0 को multiply करें h2 से, फिर integrate करें, you will get 0. h0 को multiply करें h3 से and integrate करें, you will get 0. ठीक है. एंड सेम इज ट्रू जब आप h4 पे जाएंगे, h5, h6 एंड टिल इंफिनिटी, वो हमेशा आपको 0 मिलेगा. ठीक है. तो इंफिनिटी वो एक बड़ा डिफ्यूज्ड केस होगा. लेट्स नॉट डिस्कस इंफिनिटी. तो बहरहाल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन बिल्ड दीज ऑर्थोगोनल फंक्शंस. ठीक है. सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज वेरी वंडरफुल. और इसकी बेस पे जब आपके पास स्पेशली जब FFT आया, so people started looking into discretized version of these Haar functions or Haar transform. Okay, so how do we get a discrete version of this? So that is very simple. So for example, if you are looking for HA4 matrix, so HA4 will be 4 cross 4 matrix. So simply take 4 equally spaced samples from all of these H0, H1, H2 and H3 and put them as columns. So H0 के samples इधर आ जाएंगे, H1 के samples इधर, H2 के यहाँ पे and H3 के यहाँ पे. ठीक है. और अगर कोई discontinuity पे sample आ रहा है तो आपने rising discontinuity पे sample लेना है. So for example यहाँ पे H0 में आपके पास 4 sample आएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 1 1. आपने जो 0 से 1 है उसको 4 दफा सैंपल कर लिया. जो H1 है उसके पहले दो 1 1 आएंगे, फिर -1 -1. ठीक है. जो H2 है उसमें क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन 0 0. और जो बाकी होंगे उसमें 0 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट, सॉरी एक शायद मैंने गलत बना दी है. ये जो है 0.5 वाली पल्स ये 1 तक जाएगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट 0.5 होगा 75 और ये वाला पॉइंट 1 होगा. तो ये आपकी पल्स जो है, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, दिस पॉइंट इज पल्स, दिस पॉइंट इज 1. तो ये आपके सैंपल्स आ जाएंगे, क्योंकि टोटल वेट तो उसकी 0.5 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 है. तो अगर आप उसे 0.5 से शुरू कर रहे हैं तो वो 1 तक जाएगी. वो गलत बना दिया था मैंने. ठीक है. तो अगर आपके पास अब अगर 8 क्रॉस 8 का मैट्रिक्स बनाना है तो सिमिलरली आपको 8 जो है वो हार फंक्शन जनरेट करने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू पुट देम आफ्टर सैम्पलिंग देम इनटू दिस मैट्रिक्स. ऑलराइट. So clearly since H0, H1, H2, H3 are orthogonal, this HA4 or any HAN is orthogonal matrix. Means its transform, its inverse is equal to its transform. So let's study this one in detail, this 4 cross 4 thing. Okay, so it leads to many amazing things in signal processing. उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4 cross 4 matrix है, what is this matrix and what is hidden inside this matrix. Okay, so इसमें बस एक चीज जो है वो मैं भूल गया हूँ. यहाँ पे जो आउटसाइड है वहाँ पे 1/√n भी आता है, जैसे उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में आता है. सो दिस विल बी 1/2 एज वेल. एंड 4 है तो यहाँ पे 1/2 भी आ जाएगा. Now I will call this one as H4. A को skip कर देते हैं. Let's call it H4 and let's move to new slide. और इसकी जो properties हैं कि what is hidden in the inside this H4, उनको थोड़ा सा extract करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है. Seemingly जब हम करेंगे क्या, at the end you will have Y. Using this H4 adjoint you will get X. बिल्कुल वही 4 cross 1, 4 cross 1. This is 4 cross 4. And from X to Y, you will get synthesis operator H4. So this is analysis. And this one is synthesis. ये story हम repeat कर चुके हैं.
Let's dig a deeper into this matrix. ठीक है, यहाँ पे कोई सवाल है तो I can take a pause और वो डिस्कस कर लें before we proceed to this H4 thing in detail. Okay जी, so we have this H4 matrix. Let me rewrite it here just for the sake of reference. So H4 is 1 by 2 into 1, 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, minus 1. Then we have square root of 2 minus square root of 2, 0, 0, 0, 0, square root of 2 and minus square root of 2. That is my जो आपके पास है एक fourth order Haar transform matrix. So clearly you can verify H4 inverse is equal to H4 transpose. Real matrix, nothing complex, so we will only use transpose instead of Hermitian transpose. तो होगा क्या कि जब आपके पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है, सपोज मेरे पास x of n है, so x of n है, x of n 0 से लेके n minus 1 in this case will be equal to 3, क्योंकि मैं 4 क्रॉस 4 जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ. सो आपके पास 4 सैंपल्स होंगे, समथिंग आर्बिट्रेरीली इसके 4 सैंपल होंगे. इन 4 सैंपल्स को आप स्टैक कर लेंगे x of 0, x of 1, x of 2 and x of 3. ठीक है, so this is 4 cross 1 x vector. So what you need to find is its representation, which will be again 4 cross 1 vector x, जैसे हमने DFT में किया था, x of 0, x of 1, x of 2 and x of 3. अब ये capital X है, so this is capital X. That will also be 4 cross 1. So this will be equal to simply adjoint of H4, that will be simply its transpose, H4 transpose into small x. ठीक है, so ये वाला मैट्रिक्स H4 आपके पास गिवन है, no need to rewrite it. लेकिन ये चीज आएगी, let's write it. So जो आपके पास x0 आएगा वो क्या होगा, capital X0 will be 1 by 2 into, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फॉर आर्बिट्रेरी वैल्यूज ऑफ स्मॉल x0 एंड स्मॉल x1, तो उसके बाद जो चीज आएगी वो ये आएगी, स्मॉल x of 0 प्लस स्मॉल x of 1 प्लस स्मॉल x of 2 प्लस स्मॉल x of 3. ये पहली वैल्यू होगी. Let's call it A and let's call this one as B. A क्या है, A जो आपके x of 0, स्मॉल x of 0 और स्मॉल x of 1 का सम है, और B जो है स्मॉल x of 2 और स्मॉल x of 3 का सम है. तो x of 0 की जो पहली वैल्यू आएगी that will be 1 by 2 A plus B. वो आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, मैट्रिक्स आपके पास गिवन है वो एग्जैक्टली ये चीज आएगी. तो जो x of 1 आएगी that will be equal to 1 by 2 into A minus B. ठीक है, और जो x of 2 आएगी that will be 1 over square root of 2 into x of 0 minus x of 1, और जो x of 3 आएगी लास्ट वन that will be 1 over square root of 2 into x of 2 minus x of 3. ये आपके पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी आफ्टर यू मल्टीप्लाई
x है उसको आपने h4 का ट्रांसपोज लेना है, उसको x से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी कैपिटल X की। ओके, लेट्स प्लॉट these values, let's develop a flow chart कि चीजें हमें नजर कैसे आ रही हैं। सो मेरे पास जो है वो 4 सिग्नल हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, x of 0, x of 1, x of 2 and x of 3। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट सा बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप ए और बी बना रहे हैं। ये देखें, ये ए है और ये बी है। जी मोहसिन, श्री 1/√2 क्यों आना शुरू हो गया? 1/2 की बजाय। वो अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 था ना कुछ वैल्यूज में। ओके ओके सर। हाँ, तो वो उसको करके देख लेंगे, ये एग्जैक्ट है, इसको मैंने किया हुआ, वेरीफाई इट। ओके, तो आपके पास x0 1 2 3 ये है। सबसे पहले आपने a और b बनाना है। अब देखें a क्या है, a इज सिंपली एडिशन ऑफ x0 एंड x1। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को पकड़ूं, x0 और x1 को, और इनको सिंपली ऐड कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा a। ठीक है, बड़े गौर से आपने देखनी है चीजें। और अगर मैं क्या करूं, इन्हीं दो वैल्यूज को पकड़ूं और इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b। नहीं सॉरी, b क्या है, b है x2 प्लस x3। तो मैं इसको पकड़ूं जो x2 है और जो x3 है, इन दोनों को पकड़ के अगर मैं सम कर दूं, तो मेरे पास b आ जाएगा। ठीक हो गया, यही है ना a और b। तो फिर जो कैपिटल X ऑफ 0 है वो क्या है, वो है a और b ऐड हो रहे हैं एंड 1/2। ठीक है, तो a और b को मैं पकड़ के एक दफा फिर ऐड करता हूँ, तो दिस इज एडिशन, और 1/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। तो दिस इज माई पहली चीज x ऑफ 0, कैपिटल X ऑफ 0। और अगर इन्हीं a और b को मैं माइनस कर दूं, तो कैपिटल X ऑफ 1 आ जाएगा। तो इन्हीं को अगर मैं माइनस कर दूं इधर नेगेटिव साइन के साथ, और 1/2 को मैं ऊपर लिख दूं, 1/2 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, दैट इज अ स्केलर, तो ये यहाँ पे x ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। बाकी दो क्या है, सो x ऑफ 2 क्या है, x ऑफ 2 इज सिंपली x ऑफ 0 और x ऑफ 1 का डिफरेंस है। तो आप इसको पकड़ें, तो x ऑफ 0 और x ऑफ 1 का डिफरेंस, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट इज माई x ऑफ 2। ऊपर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक है, और जो आखिरी है वैल्यू, आखिरी क्या है, वो x ऑफ 2 और x ऑफ 3 का डिफरेंस है। तो इसका और इसका डिफरेंस ले लें। सॉरी, वो जगह छोटी थी, नहीं तो ये बड़ा प्यारा वो फ्लो ग्राफ बनता है, x ऑफ 3, इसके ऊपर भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखें, ऑपरेशन दो यूज हो रहे हैं, एडिशन हो रही है और सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, कोई एक स्केलर मल्टीप्लायर आ जाता है। स्केलर मल्टीप्लायर कुछ भी नहीं करता, असल चीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है जो हो रही है पूरे फ्लो ग्राफ के अंदर, राइट। तो ये मेरे पास जो है वो गिवन डेटा था या गिवन सिग्नल था टाइम डोमेन में स्मॉल x। यूजिंग एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस एंड दिस फ्लो चार्ट, मैंने क्या किया, x0 x1 x2 और x3 जो है ये कैपिटल X मुझे मिल गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि व्हाट दिस फ्लो चार्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट। ये प्लस और माइनस हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू डिकोड दैट। ओके, so when I take a signal, for example in this case, so if I take A, I take B, और जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास कोई एक वैल्यू आ जाती है।
Similarly, when I take A and I take B, और जब इनको मैं subtract कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है. Now this addition and subtraction and signal processing are done by filters. ठीक है, तो एक हमारे पास लो पास फिल्टर है, दूसरा हाई पास फिल्टर है. Let me explain that point. So let's consider two filters. One is moving average. आप लोगों ने फिल्टर्स पढ़े हुए हैं. So first type is moving average filter. And second type is moving difference. Okay. So let's consider H0 of n. एक फिल्टर है जिसका impulse response. I am hopeful that all of you know, even master and PhD students, all of you know what is impulse response. So impulse response of a filter, let's take it to be equal to like this, 1/2 and 1/2. So this is n, 0, 1. So पहली value भी 1/2 है, दूसरी value भी 1/2 है. Only two step filter, सिर्फ जिसमें दो values है. Let's take H1 of n here, whose impulse response is एक जो है वो माइनस है. कौन सी वाली? दूसरी. So 0 पे पड़ा हुआ है 1/2 और 1 पे पड़ा हुआ है -1/2. ठीक है. Okay, so let's see what is the frequency response of these two filters, H0 or H1. By frequency response, I mean discrete time Fourier transform. So अगर आप H0 of n का जो है वो Fourier transform लेंगे, discrete time Fourier transform, जिसको आप e raised to power j omega हो सकता है आपने पढ़ा हो. So I use this notation H0 of omega. That turns out to be cos of omega by 2 e raised to power minus j omega by 2. फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना आपको आता है तो मैंने वो एक दो स्टेप स्किप कर दी है. सिमिलरली जब आप इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लेंगे H1 का, that will be H1 of omega will turn out to be j multiplied by sine of omega by 2 e raised to power minus j omega by 2. ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा दोनों का. अब अगर इसको प्लॉट करेंगे तो एक केस में अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का प्लॉट लूं इन दोनों का, तो दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा 0 0 माइनस पाई से पाई. तो जो H0 है उसका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, कोसाइन है इसमें, ओमेगा बाई 2 के ऊपर है, सो इट्स रिस्पॉन्स विल बी लाइक अ कोसाइन वेव लाइक दिस. और जो दूसरा है वो साइन है, तो जब आप उसका वो करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो साइन जो है वो ऐसे आ जाएगा, इस तरह की चीज आ जाएगी. ठीक है, और जो आपका फेज रिस्पॉन्स होगा तो उसकी वैसे जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को समझ आ जाए, फेज रिस्पॉन्स यहाँ पे सिंपल आपके पास माइनस ओमेगा बाई 2 है तो इसका फेज ऐसे जाएगा. और इस केस में आपका जो फेज है j टाइम्स माइनस ओमेगा बाई 2 है, j इज पाई बाई 2, तो आपका जो फेज होगा वो माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2 से लेके पाई बाई 2 माइनस ओमेगा बाई 2 तक वेरी करेगा. सो फेज विल बी लाइक दिस. सिग्नल एंड सिस्टम की चीजें हैं, होपफुली यू अंडरस्टैंड दैम. ओके, सो क्लियरली जो मेरे पास मूविंग एवरेज था जिसमें दोनों टैप पॉजिटिव थे, उसका रिस्पांस देखें. सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड रिस्पांस पे फोकस करें तो ये किस टाइप का रिस्पांस है. देखें यहाँ पे 0 के अराउंड आपकी लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और जब आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी विच इज पाई,
आपके फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है दैट इज डिकेइंग टू 0. सो क्लियरली दिस इज लो पास, कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये पास करने देगा. एंड एग्जैक्टली अपोजिट इज अचीव्ड इन केस ऑफ मूविंग डिफरेंस. आप सिंपली एक टैब के आपने वैल्यू वही रखी है, सिर्फ उसका साइन चेंज कर दिया है. सो पाई इज योर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डिस्क्रीट टाइम. So 0 के ऊपर इसका रिस्पॉन्स 0 है, and when you are moving towards highest frequency, its response is approaching to 1. This is 1. ठीक है? So this is clearly high pass filter. So these are the most widely used low pass and high pass filter. Moving average and moving difference. आपके पास 1/2 है, 2 टैप फिल्टर है, दूसरे में सिंपल आप एक टैप को उलट कर दें, that becomes high pass filter. ओके, तो अब जो मूविंग एवरेज है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बेसिकली आपके जो ए और बी है उनको सम करके आउटपुट पे दे रहा है यहाँ पे, और जो मूविंग डिफरेंस है वो ए और बी को माइनस करके आउटपुट पे दे रहा है. तो एक दफा लो पास फिल्टरिंग हो रही है, एक दफा हाई पास फिल्टरिंग हो रही है. ठीक है, आप ए और बी को एक दफा लो पास फिल्टर में से पास कर रहे हैं, दूसरी दफा ए और बी को हाई पास फिल्टर में से पास कर रहे हैं, और आपके पास दो डिफरेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं. इसको ऐसे समझ लें, सपोज मेरे पास जो है, लेट्स मूव टू न्यू स्लाइड. वो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा सारा कुछ जो मैं करना चाह रहा हूँ. सपोज हमारे पास जो है वो एक सिग्नल है जो कि जिसके अंदर दो साइनोसाइड्स हैं. सो समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो एक लो पास ट्रेंड है, दूसरा हाई पास ट्रेंड है. जो लो पास ट्रेंड है उसके ऊपर हाई पास ट्रेंड जो है वो एम्बेडेड है यहाँ पे. तो व्हाट आई डू, I take this x of n and I pass it through these two filters. So first filter is 1/2 जिसका रिस्पॉन्स अभी हमने देखा, and second filter is 1/2 minus 1/2. So what will happen, जो लो पास ट्रेंड है, जो इसका एनवेलप है समथिंग, ये वाली जो लो पास वेवफॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, और जो हाई पास ट्रेंड है वो दूसरे फिल्टर की आउटपुट पे आ जाएगी. ठीक हो गया. तो हम इस चीज को कहते हैं कि जो लो पास की आउटपुट है दैट इज स्मूथ और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स ऑफ एन. सपोज दिस इज एक्स ऑफ एन, हम कहते हैं स्मूथ और अप्रोक्सीमेट वर्जन ऑफ एक्स ऑफ एन. ठीक है, एग्जैक्टली सेम इज अप्लाइड टू इमेजेस. अगर आपको एक डिमेंशन में समझ आ जाएगी, इमेजेस पे एक्सटेंशन बहुत सिंपल है. तो ये है जो हाई पास ट्रेंड है, what do we call it? We call it detailed information. Detailed trend of x of n, या detailed information of x of n. Smooth versus detailed. So detail is something which is deviated from smooth one. अब होगा क्या, हो ये रहा होगा कि आपके पास जो है वो जो इनपुट पे x ऑफ n है वो तो आई जा रहा है ना, कंटिन्यूस सैंपल्स हैं उसके. हम उसको सिर्फ वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं कि हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज होता है कंप्यूटर पे. एक्चुअली थ्योरी में तो हम उसको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक देखते हैं ना. तो आपके पास जो इनपुट पे वेक्टर है वो इस तरह का होगा. सो आपके पास -इन्फिनिटी से आ रही हैं चीजें, फिर आपके पास x-2 है, x-1 है. दिस इज another way of representing x of -2. x of 0 है, x of 1 है, x of 2 है, एंड सो ऑन. ये इनपुट पे आ रहा होगा इन दोनों फिल्टर्स की. राइट, सो जब ये वाली चीज पास होगी 1/2 में से, जब ये 1/2 में से पास होगी तो आपको एक x मिलेगा. और जब ये पास होगी -1/2 में से, सॉरी 1/2 और -1/2, एक के साथ माइनस है,
तो यहाँ पे जो ट्रेंड मिलेगा लो पास वाले में, लेट्स कॉल इट x अंडरस्कोर स्मॉल l, l फॉर लो पास, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्मॉल h. So small l will be 1/2 into एवरेजिंग करनी है उसने कंसेक्टिव सैंपल्स की, तो n इज इक्वल टू 0 पे होगा x ऑफ 0 प्लस x ऑफ -1, इसके बिल्कुल ऊपर होगा x ऑफ -1 प्लस x ऑफ -2, इसके एग्जैक्टली ऊपर होगा x ऑफ -2 प्लस x ऑफ -3 एंड सो ऑन. ठीक है, और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे होगा x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 0 एंड सो ऑन. ये वेक्टर आपको आउटपुट पे मिलेगा. अब उसको इंस्टेड ऑफ, ये कन्वोल्यूशन हो रहा है 1/2 का इनपुट आर्बिट्रेरी सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन, एग्जैक्टली ये चीज बनेगी अगर उसके सिर्फ 2 टैप्स हैं तो. और जो x ऑफ h है अगर आप उसको देखेंगे तो वो क्या मिलेगा, सो x ऑफ h मिलेगा 1/2 into, so n is equal to 0 से हमेशा स्टार्ट करते हैं, that will be x of 0 minus x of -1, तो यहाँ पे होगा x of -1 minus x of -2 and so on, और इधर होगा x of 1 minus x of 0 and so on. ये आपके पास आउटपुट आ रही होगी इन दो फिल्टर्स की, एक लो पास है एक हाई पास है. अब what I can do, I can add them. If I add x of L plus x of H, I will exactly get x without any loss of information. There is absolutely no loss. आप इन्हीं दो वेक्टर्स को जो लिखे हुए हैं इनको सम करें, उसके पास exactly जो x है वो आ जाएगा. But the issue is, what we can do, we can throw away some information. So remember, this is n is equal to 0. Similarly, this one is n is equal to 0. So it happens that what we can do, we can put a block. We can put a block here. Let me use other color. So we can put a block here, and we can put a block here as well. So this block is a downsampler. What is a downsampler? So downsampler is starting from 0. आप जो हर दूसरा sample है, for example in this case if downsampling is by downsample factor of 2, you throw away. ठीक है, you throw away that sample. So अब क्या होगा, अब आपके पास जो है वो ये वाला sample sorry, ये वाला sample, ये सैंपल निकल जाएगा, ये सैंपल निकल जाएगा, सिमिलरली ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड अल्टरनेट सैंपल्स ये 0 होते जाएंगे. ठीक है, ये मैं बता के आ रहा हूँ, ये मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ बिटवीन दीज फिल्टर्स और जो मैट्रिक्स इंटू वेक्टर आया था. अभी थोड़ी देर में एग्जैक्टली वही चीज आ जाएगी जो मैट्रिक्स इंटू वेक्टर के साथ हमारे पास आई थी. तो अब हो क्या रहा है कि आपने x को पकड़ा, x को लो पास में से पास किया, देन यू हैव अ डाउन सैंपलर. आपने हाई पास में से पास किया एंड देन यू हैव अ डाउन सैंपलर x ऑफ h. ओके, सो जो आपके पास फ्लो चेन बन गई वो ये है. सो दिस इज लो पास फिल्टर, दिस इज हाई पास फिल्टर, right? So low pass filter, high pass filter, then you have a downsampler by 2 and a downsampler by 2. So let's call it x subscript l. वही notation use कर लेते हैं, x subscript h. अब मैं क्या करता हूँ, इस x और xl और xh को कैपिटल X के कॉलम्स के तौर पे रख देता हूँ. So xl, sorry, xh.
So something is happening here in this block, which gives me capital X equal to some function of small x. Capital X, which is a matrix, equal to some function of small x. इसको भी देखते हैं ये क्या हो रहा है फंक्शन, बट आई शुड बी एबल टू रिकवर दिस x फ्रॉम दिस कैपिटल X. अगर मैं इसको रिकवर नहीं कर पाता देन माय रिप्रेजेंटेशन इज यूजलेस, क्योंकि रिकवरी जो है वो बेसिक जो है वो शर्त है आपकी किसी भी ट्रांसफॉर्म की. तो जब मैं डाउन सैम्पलिंग नहीं कर रहा था तो सिंपली ऐड करके मैं उसको रिकवर कर पा रहा था. अब जब मैंने डाउन सैम्पलिंग कर दी, आई थ्रू अवे सम सैंपल्स, तो पहली जो चीज हमारे जहन में आती है वो ये होगी कि नाउ रिकवरी इज नो मोर पॉसिबल. आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते XL और XH से आफ्टर यू हैव थ्रोन अवे सम सैंपल्स. बट वी कैन वेरीफाई कि अगर आप स्पेशल तरीके से प्रोसेस करें इस XL और XH को, यू कैन एग्जैक्टली गेट X बैक. No loss of information even if you have thrown away some samples. और वो जो स्पेशल तरीका है वो ये है. So what you have to do is you have to first match the rate. So XL XH, तो चूंकि आपने पहले डाउन सैंपल किया था, अब आप इसको अप सैंपल करेंगे बाय द सेम अमाउंट. अप सैंपल बाय सेम अमाउंट. 2 से डाउन सैंपल किया था तो 2 से ही हम अप सैंपल करेंगे. We will get immediate signals, so intermediate signals, sorry. So that is VL and VH. ठीक है. और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को सम कर देंगे. नहीं सॉरी, गलत हो गया. सम नहीं करेंगे, हम इनको उसी तरीके से लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में से पास करेंगे. ठीक है. अब लेकिन अब इनका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट रख लेते हैं. H0 और H1 की बजाय F0 और F1 रख देते हैं. And then we will sum them to get our original X back. Okay. तो VL क्या करेगा? Let's complete this chain. So VL जो है वो XL को पकड़ेगा, ठीक है, जिसमें से आपने एक सैंपल थ्रो कर दिया था आफ्टर डाउन सैंपलिंग, और जो सैंपल थ्रो हुआ था वहां पे सिंपली 0 ऐड कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा. दैट इज अप सैंपलिंग ऑपरेशन. सो 1/2, सो X0 प्लस X माइनस 1, इसके ऊपर 0 डाल देगा, यहाँ पे 0 डाल देगा, एंड सो ऑन. और जो VH है वो क्या करेगा, वो भी उसी तरीके से जो XH था उसमें zeros डाल देगा. So that will be equal to X0 minus X minus 1, 0 and 0. So ठीक है. अब ये जो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर आगे हमारे पास लगे हुए हैं, लेट्स चूज देम क्लेवरली. Something like this, that this is equal to 1,1, जैसे उधर लिया था 1/2, 1/2 और 1,1, बोथ आर लो पास फिल्टर. और यहाँ पे अब लेकिन ओके, सो लेट मी टेल यू नाउ, दिस इज n इज इक्वल टू 0. दिस इज नॉन कॉजल फिल्टर, और f1 ऑफ n हम लेंगे -1,1. अभी मुझे कैसे पता चला कि ये वाले फिल्टर्स लेने हैं, ये मैं लेक्चर के एंड पे बताता हूँ. तो आपने एक लो पास फिल्टर ले लिया, एक हाई पास फिल्टर ले लिया. तो जब आप इसको लो पास फिल्टर में से पास करेंगे VL को, तो आपके पास जो वेक्टर आएगा, लेट्स लेबल दिस थिंग एज UL एंड दिस थिंग एज UH. तो जो UL वेक्टर आएगा, यू कैन वेरीफाई
दैट विल बी 1/2 बार रहेगा वैसे के वैसे, क्योंकि मैंने उसको 1 ले लिया अब। तो ये आ जाएगा x0 प्लस x माइनस 1, दिस इज n इज इक्वल टू 0। हमेशा यहाँ से कंस्ट्रक्ट करें। इसके जो ऊपर आएगा दैट विल बी x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। और जिसके नीचे आएगा दैट विल बी x0 प्लस x माइनस 1। रेपिटेशन हो जाएगी एक्चुअली। और जो UH आएगा दैट विल बी 1/2 इनटू तो x0 minus x minus 1, that will be n is equal to 0। और इसकी भी इसी तरीके से रेपिटेशन होगी। एग्जैक्टली इसका अगला भी यही होगा, x0 minus x minus 1, ऊपर आएगा x minus 2 minus x minus 3 and so on। सॉरी एक्चुअली हाँ जी ये आएगा। और जो आप इनको ऐड करेंगे तो इट हैपन्स के फॉर एग्जांपल अगर आप इस इंडेक्स के ऊपर देखें तो ये वाली वैल्यू ऐड होगी इस वैल्यू के साथ। तो x माइनस 1 से खत्म हो जाएगा, x0 प्लस x0 2x0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यू विल एग्जैक्टली रिकवर x0। हाँ जी मोहसिन। सर मुझे UH का एक्सप्रेशन नहीं सही लग रहा, उसमें जो रेपिटेशन होगी उसका साइन इन्वर्टेड होगा। वो उसको ना मैंने उल्टा करके लिख दिया है। तो अच्छा हाँ ठीक है, जो ये होगा ना ये होगा, एक होगा x माइनस 1 माइनस x0, तो ये वाला होगा फॉर n इज इक्वल टू 1, सॉरी थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, दिस विल बी फॉर n इज इक्वल टू -1, और n इज इक्वल टू 0 के लिए जो आएगा दैट विल बी x0 माइनस x माइनस 1। वो इस तरीके से आएगा। पर इसको आप खोल के देख लीजिएगा, यू एग्जैक्टली गेट जो आपके पास ओरिजिनल x था वो इस तरीके से रिकवर हो जाता है ड्यू टू दिस लो पास एंड हाई पास फिल्टरिंग, मूविंग सम एंड मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ बिकॉज ये चीजें आप लोगों ने की हुई हैं कन्वोल्यूशन वगैरह, तो इवन इफ यू हैव एनी डाउट हम इसको बाद में रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ कनेक्टिंग एवरीथिंग विद व्हाट वी हैव सीन इन, वो जो हमारे पास एक पुराना फ्लो चार्ट ग्राफ था, तो अब मेरे पास अगर x है तो x को मैं क्या करता हूँ, लो पास फिल्टर में से पास करता हूँ, दिस इज लो पास फिल्टर। इसको मैं क्या करता हूँ, हाई पास फिल्टर में से पास करता हूँ, फिर इसको मैं डाउन सैंपल करता हूँ, ठीक है, देन आई अप सैंपल इट, then I pass it through another low pass filter, I pass it through another high pass filter, and then when I sum it, I exactly get my x back. Okay. Now, if this x is, for example, 8 cross 1, तो फिर हमारी लाइफ बड़ी सिंपल हो जाएगी। उस केस में आपको वो जो हम अभी मैं बड़े बड़े वेक्टर बना रहा था वो बड़े सिंपल हो जाएंगे बनाने। So if this x is something like this, let's suppose randomly ले लेता हूँ 7 5 2 2 0 2 5 1, तो यहाँ पे जो मेरे पास चीज बचेगी, so that will be capital X, और उसको मैं ऐसे देखूंगा XL XH, these will be 4 cross 1 vectors। so let's suppose यहाँ पे कुछ आ जाता है 1 0 minus 1 2, डिपेंडिंग ऑन आपने लो पास फिल्टर के कोएफिशिएंट्स क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे आ जाता है 6 2 1 3, ठीक है। now this X is basically representation of your X in frequency domain। कैसे? so this is omega, तो आपके पास एक लो पास फिल्टर पड़ा हुआ है फ्रॉम पाई तक, और फिर आपके पास एक हाई पास फिल्टर पड़ा हुआ है। तो जो लो पास फिल्टर है इसकी आउटपुट आपको XL देती है, और जो हाई पास फिल्टर है
इसकी आउटपुट आपको XH देती है। ठीक है, अब मैं इस सारी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ? आई रिप्रेजेंट इट इन अ टाइम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, कि मेरे पास जो x एक्सिस है उस पे n होता है और जो y एक्सिस है उस पे ओमेगा होती है। सो n है मेरा 0 से लेके 8 तक, सॉरी 7 तक, 8 सैंपल है ना। ठीक है, तो ये हो गए 8 सैंपल मेरे पास। एक दो तीन, ये हो गया। ओमेगा में ये पॉइंट है मेरा π/2, ये है 0 और ये है पाई, और यहां पे पड़ा हुआ है मेरे पास 1, ये वाला 1, यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास 0, ये वाला 0, देन आई हैव -1 और फिर है मेरे पास 2। अच्छा, डाउन सैम्पलिंग भी हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, थोड़ा सा गलत हो गया है काम। डाउन सैम्पलिंग को मैं भूल गया था। सो आपके जो ओरिजिनल x है उसका टाइम स्केल है 0 से 7 तक, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप हर एक सैंपल थ्रो कर रहे हैं। तो ये जो दो सैंपल्स हैं x ऑफ n के, उसके करिस्पॉन्डिंग 1 पड़ा हुआ है। फिर जो अगले दो सैंपल्स हैं उसके करिस्पॉन्डिंग 0 पड़ा हुआ है। फिर जो अगले दो सैंपल्स हैं उसके करिस्पॉन्डिंग -1 पड़ा हुआ है, एंड देन यू हैव 2। ठीक है, और जो हाई पास है, हाई पास फिल्टर की आउटपुट में आपके पास 6 पड़ा हुआ है, देन यू हैव 2, 1 एंड 3। वेरी सिंपल ट्रांसफॉर्म, मतलब वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन कि आप फिल्टर में से पास करें और उसको टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर दें। अब क्या होगा कि ओके, सो यू शुड हैव टोल्ड मी वी आर 10 मिनट्स जो है हम ऊपर ले चुके हैं टाइम, सो आई विल स्टॉप हियर और हम बिल्कुल इसी रिप्रेजेंटेशन से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसी डायग्राम से शुरू करेंगे, मैं बल्कि दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में कि कैसे जो है दिस थिंग इज कनेक्टेड टू जो हमारा पहला फ्लो चार्ट था ऑफ डिस्क्रीट हार्ट ट्रांसफॉर्म, एंड हाउ इट ओपन्स न्यू होराइजन्स अबाउट डिफाइनिंग योर ओन ट्रांसफॉर्म फॉर योर डेटा एनालिसिस और सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके जी, सॉरी वो मैं थोड़ा ऊपर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला, वो मैं चीज़ों में इतना वो महव हो गया था। So if you have any question, you can ask. Otherwise, that is it from my side.